presentation is visible? Okay. Yes, it is visible. Yes, Yes, We sir. sir. were not, yeah, we have to Yes, sir, start it's again from the visible. objectives. Done. So, main objectives is like we are talking about a plot, character, and the unities. And in dramatic structure, it is a wide range from imaginary to symbolism. What is imaginary and what is symbolism, setting and props? What is a dialogue and what is an action, which may lead us into acts and scenes. From atmosphere, atmosphere is nothing but the mood of the scene and the setting of the play and tone of the play. What is a tone? Tone is also similar to the mood of the play. Okay, this unit we are talking, we will be understanding these terminology, dramatic terminology, in the form of aspects of drama. Aspects are nothing but the various elements, rather various elements which constitute a play in general. Okay, so coming back to the introduction, as we all know that drama is an independent art form. Dependent art form, sorry. Dependent art form in the sense that it is not a single entity, which is an independent art form which emerges. It depends, rather it depends on the director, actor, dialogue, story, and mainly the audience. At the end, audience, action, setting, props, costume, stage, spectators. We require all these elements to make a play happen on stage, isn't it? So we need a literature, we need architecture, we need painting, we need costumes, we need makeup, we need actors, not only actors, the acting talent as such, we need a director to guide us. So this is in a dependent form. In other words, we call it as a dependent word is something which is giving a negative element, negative kind of a meaning. So we call it as a composite art, where composite art is art where many kinds of art forms are involved in it. Okay, the pain will also have the conflict. What is conflict? Conflict is nothing but a kind difference of opinions between people, difference of opinion between the ideologies, methodologies. It can be between two persons and so on. Action. When a conflict arises, there will be an action, and a crisis. Crisis is the final. When we are going to the climax, we say that the problem has come to a crisis. And the atmosphere is nothing but, as I already told you, what is the mood of the play. If you are planning for a comedy, it will be in a lighter way. The whole atmosphere of the play goes before the naked eyes of the audience. All these are entertaining to watch. Ultimately, the goal earlier was to entertain the people. Now, theater has another dimension which we call as education also. So, the new word is coming up like edutainment. It is also not only the entertainment, it also gives us some kind of a education which we call it as didactic. Theater is something which teaches us, which gives us some moral values, which starts some debate. It may not give you a conclusion. See, if A is the problem, B is the solution. No, it is not like that. But if A is the problem, B can be a solution. But what can be the solution? It can also give a question to the wider scope to discuss in the minds of the audience. So if you see the Brechtian plays, all Brechtian plays are like, they will give some kind of they will open in some kind of a dialogue between two people, two ideologies, two methodologies, two persons, and they will ask some questions. If we are into that kind of a problem, what kind of a solution the audience society will give to us? That is also one kind of a structure which is came up. But primarily, the theater was meant for entertainment. Plays are enjoyable to read, not only by seeing, you can read the text, and you can also enjoy where the words are alone the medium. Words are used as medium of communication. So drama is most peculiar. What do you mean by peculiar? Peculiar means odd, unusual, elusive. Elusive means subtle, and enthralling. Enthralling is nothing but fascinating things are happening in the naked eyes of the audience
in the form of using the medium of action and even using the literature. It has a universal appeal and lies near to the deeper conscious of nation in which it rises. Nicole says that it is the deeper consciousness of the nation. So, in undercurrent, if you are doing an Indian play, the Indianness, see, the Indian consciousness will be shown on the in the form of a play. If you are going for a Western theater or a Japanese play or a Chinese play, it reflects the nation. It reflects the deeper consciousness of that particular nation, that particular area, that particular people and the culture and traditions, their innovations, their continuity. All that be shown in the form of a play. It is capable of addressing wide range of people. It is not meant for only one single guy, where one person is reading a novel, the author is maybe directly addressing one particular reader. But here in a play, it is coming up on stage, it is addressing a wide range and with a diversity of different types of people who are there in the audience. It is addressing them the problem. Okay, the literary text reminds us of a building. It has a base, it has a basement, and then over the basement you have walls, and over the walls you will be building up something. So like that, we also develop the structure in the play. In any literary work, the structure comprises the story. One story is there, or maybe one idea is there, or one concept is there. For to express that story or the idea, we need characters, the persons who takes the story forward, to make the action. And with the dialogues, with the literature, we are able to convey what the actually the characters are trying to say. Uh, so with the use of some kind of images is nothing but the symbolic symbols. We are using some symbols. If you are using some, let us say, for simple example, I am saying that there is a smoke is being shown on stage. So it means that somewhere the fire has been lit up. Instead of showing the fire, we can just show the smoke, so that it will give some kind of a um, indirect meaning. We are not directly saying, we are making the audience to think about that, some kind of a symbols we are using. For example, I am using a red light on stage. So red light itself implies that there is some kind of a danger. If I am using a white or yellow light or a blue light, something which is a very soothing kind of a scene is being to come up before the audiences. And I can also use some kind of an audio visual media. Now the video art is also being used while the play is going on. There is a video coming up, and even your acting of the characters in the form of play is also simultaneously running. It means that I want to show some other things through my video art, and through play something else. Or it may have the relation between these two. Sometimes it may not have a relation, as I want to show it symbolically something else. Okay, this is how we use different kinds of elements in the form of theater. Okay, we'll be using metaphors. Metaphors are nothing but images. If something, somewhere I have put up a portrait of one particular guy and just leave it to the audience to think about it. But it will have some kind of a meaning at the starting, maybe at the end of the play, or at the middle of the play. That image will be coming up. And if in one scene I'm shutting down all the lights and just showing a light on that particular portrait to indicate that something is related to that kind of a portrait, to the play which is running on the stage. So these kind of images I will use as and when it require, as a director, as an actor, as a play producer. Okay, thus the dramatic presents the life on the stage. We always try to present the life and the struggles and the solutions, problems, conflicts between the people. One must grasp this wider meaning of the play. This is implicit in the action and characterization, the dramatic theme, and the dialogues which reveal the soul of the play. The dialogues क्या करते हैं, डायलॉग भी ड्रामा में क्या होने वाला है, क्या स्टोरी है, और एक पर्टिकुलर का किरदार है, किरदार के बारे में भी ये लाइन्स हमें बताते हैं.
जैसे किरदार कुछ बात कर रहा है या एक किरदार दूसरे किरदार के बारे में बात कर रहा है, तब आप समझ में आएगा कि यस, दिस इज द स्टोरी। ये कहानी आगे ले जाने के लिए, कहानी का आत्मा जो होता है उसको आगे ले जाने के लिए हमें कैरेक्टर्स का हेल्प लेना पड़ेगा। और जो ड्रामेटिक थीम है, हम जो कहना चाह रहे हैं वो भी हम डायलॉग्स या लाइंस के तरह जो किरदार बोलते हैं उसी से हम समझते हैं, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेशन जो है ना एक्टर्स से ऑडियंस तक जो पहुंचता है, उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक्टर्स जो बोलते हैं उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो ऑडिबिलिटी, जैसे हम बोलते हैं कि वो हमें हमें सुनाई देना चाहिए। ऑडिबिलिटी का मतलब जो किरदार, जो एक्टर बोल रहा है उसको ऑडियंस को सुनना चाहिए। पहले सुनना चाहिए मतलब वो इतना जोर से बोले या उस तरह से बोले कि ऑडियंस एटलीस्ट सुन सके। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है? वो समझ में आना चाहिए। किरदार जो बोल रहा है वो समझ में आना चाहिए, ना कि कम्युनिकेशन गैप ना हो। एक्टर कुछ बोल रहा है और ऑडियंस कुछ और समझ रहे हैं तो फिर कहानी का कहीं पहुंचेगा नहीं, कहानी हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो एक्टर ट्रेनिंग में हम ये बोलते हैं कि योर वॉइस शुड रीच टू द ऑडियंस फर्स्ट रीचिंग में आपका 50% का सक्सेस हो गया। अब 50%, बाकी 50% ये है कि आप एज एन एक्टर आप जो बोल रहे हो, जो ऑडियंस को समझ में आना चाहिए आप क्या बोल रहे हो, तभी तो कहानी समझ में आएगा। तो इन दोनों चीजों में हमें एक्टर को ट्रेन करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आई वुड लाइक टू टेल यू। एंड व्हाट इज ड्रामेटिक स्ट्रक्चर? नाउ वी आर कमिंग टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में मेन ये है कि प्लॉट को अरिस्टोटल ने बोला था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, who was Aristotle and all that stuff. Aristotle said कि plot is the spine of a tragedy. Spine का मतलब जानते हैं ना, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं। प्लॉट जो होता है नाटक का रीढ़ की हड्डी होती है। उसे अगर हम सही से नाटककार जो नाटक लिखते हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे तो नाटक सक्सेस हो जाएगा। So what is the simplest definition of a plot is the radical arrangements of dramatic incidents is known as plot. तो ये समझना चाहिए आपको। व्हाट इज द रेडिकल? रेडिकल का मतलब क्या है? रेडिकल का मतलब ये नहीं कि वो कोई विप्लवात्मक होता है, नहीं। रेडिकल का मतलब होता है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ ड्रामेटिक इंसिडेंट। सपोज एक बंदे का कहानी आप नाटक के तौर दिखाना चाहते हैं, तो वो बंदे का एज सपोज 50 ईयर्स है। 50 ईयर्स में उसकी कहानी, वो उसकी जीवन की कहानी बहुत लंबी चौड़ी होती है। 50 साल का अगर वो पूरा हम नहीं दिखा पाएंगे नाटक के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? उनकी जिंदगी में जो ड्रामेटिक इंसिडेंट्स हुए हैं उनके जिंदगी में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर हिज स्टोरी, वी विल पिक अप। चाइल्डहुड से एक ले लिया, यंग एज में एक ले लिया, मिडिल एज में एक सीन ले लिया, अंत में एक सीन ले लिया। ये 4-5 सीनों को हम एक कहानी की तरह बताते हैं, तो वो प्लॉट कहा जाता है। ना कि हम बचपन का 10 साल बता दिए, फिर बाद में 20 साल, फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपका नाटक का अवधि क्या होता है? व्हाट इज योर ड्यूरेशन? मे बी एन आवर, 1.5 आवर, मैक्सिमम 2 आवर्स। 2 घंटे में या 1 घंटे में, 2.5 घंटे में आप कितना कहानी सुना सकते हैं? तो आपको चुनना पड़ेगा कि इस नाटक में या इस कहानी में हम आखिर किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहते हैं, या ऑडियंस का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहते हैं, उन्हीं को चुनते हैं हम लोग। हर नाटक को आप देखिएगा तो वो सही होता है। इवन रामायण भी लेंगे तो पूरा रामायण नहीं दिखाएंगे हम लोग, उसमें से कुछ गिने चुने अंश को ही दिखाएंगे हम, ठीक है ना। प्लॉट मोर इंक्लूसिव टर्म, इट इज फुल्ली डेवलप्ड वर्जन ऑफ द स्टोरी। एक छोटी सी कहानी है, सपोज छोटी सी कहानी है, वो कहानी को आप फुल्ली डेवलप करना चाहते हैं। 2-3 लाइन का ही कहानी है, सपोज 2-3 लाइन की कहानी आप 1 घंटा 2 घंटा दिखा सकते हैं, तो उसको एलॉबरेट करते हैं, उसमें इंसिडेंट्स को डेवलप करते हैं, विच इज हैविंग द ड्रामेटिक इंसिडेंट। नाटकीयत उधर होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए। ड्रामा मैंने पहले बताया था, ड्रामा इज नथिंग बट द वर्ड ड्रॉन वर्ड, ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड ड्रॉन से ड्रा हुआ है। उसका मीनिंग यह है टू एक्ट और टू डू समथिंग इज नथिंग बट ड्रामा। It takes account of the nature of the characters in the way in which events are related to each other and their dramatic effect. इसका मतलब इसमें प्लॉट में एक वो कैरेक्टर्स भी आते हैं, किरदार, how the characters are placed in the play, how they are related to the events.
जो घटनाओं से इन किरदारों का क्या रिलेशन है, ये भी प्लॉट के अंदर ही आता है. प्लॉट टॉक्स अबाउट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले. ओवरऑल जो पूरी तरह एक नाटक का पूरा एक चित्रण जो करता है, वो प्लॉट हमको बताता है ना. क्या एक कैरेक्टर नहीं बता सकता, एक सिंगल कैरेक्टर आपको पूरी कहानी नहीं बता सकता. फॉर एग्जाम्पल, आपने रावण का कैरेक्टर लिया तो रावण के कैरेक्टर से आप पूरा रामायण नहीं समझ पाएंगे, मगर जब एक प्लॉट बनती है रामायण का, उसे आपका पूरा स्टोरी समझ में आता है. ये बहुत जरूरी है. द प्लॉट, अरिस्टोटल टर्म्ड एज मिथोस, in a dramatic and narrative work is constituted by number of events as they are presented in the order so that specific artistic effects are created. इसका मीनिंग क्या है, मैंने पहले बताया था. आपने इंसिडेंट्स को चुनेंगे, वो इस तरह से चुनेंगे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक वो कड़ी बनती है ना. एक बिंदु है, उसका दूसरा बिंदु, स्टोरी का एक रिलेशनशिप बनता है जो नेचुरली. इसका मतलब ये हुआ कि a play should have a starting point and a middle point and an end point. इसका मतलब एक आरंभ होता है, वो कुछ बीच तक जाता है, मिडिल तक जाता है ना. उसके बाद उसका कहानी का अंत होता है. इस तरह का रिलेशन. एक ऑल ऑफ ए सडन कहानी शुरू नहीं होती है, एंड नहीं होती है. उसका एक तरीका होता है कि आपने कहानी कहाँ से शुरू किया. उसका जन्म से शुरू किया, फिर उसके बाद में शादी तक बताया, किसी के साथ फाइट हुआ, उसका अंत में वो किसी का विजय हो गया, किसी का पराजय हो गया. इस तरह का एक रिलेशनशिप होना चाहिए. प्लॉट एंड कैरेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट. क्यों? प्लॉट में से उद्भव होता है कैरेक्टर. प्लॉट विल गिव बर्थ टू द कैरेक्टर्स, दैट इज द मेन रीजन. प्लॉट एंड कैरेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक के ऊपर एक निर्भर है, इसका मीनिंग. The dramatist, मतलब नाटककार, is given a task of providing actors with such a dialogues as will enable us them adequately to interpret their parts and at the same time they are complete in harmony. इसका मतलब नाटककार जो किरदारों को जो लाइंस लिखते हैं, जैसे हम जनरल भाषा में डायलॉग कहते हैं, वो इतना एडिक्वेट होना चाहिए, इतना संपूर्ण होना चाहिए कि वो कहानी के बारे में और अपने किरदार के बारे में पूरी तरह संपूर्ण होकर हमें समझाने की मूड में होना चाहिए. समझाने तक वो हम वैसा लिखना चाहिए, ना कि कोई देयर मस्ट बी सम कंफ्यूजन. द मेन स्टोरी इज बीन रन विद द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स व्हिच बीइंग डिलीवर्ड बाय द कैरेक्टर्स. वो इतना सक्षम होना चाहिए कि आपको वो उनकी बोलने से ही आपको कहानी समझ में आना चाहिए. ये मतलब है. निकोल करके वो एक नाटककार है, एक थिएटरिस्ट है, वो बोलते हैं एनी ड्रामेटिस्ट sets to work, he will have at the outset 3 things to determine. आज मैंने पहले बता रहा था कि उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एक मिडिल पॉइंट होना चाहिए, एक एंड पॉइंट होना चाहिए. तभी आपको जो कहानी हो रही है वो समझ में आना चाहिए. पहले आप तय कर लीजिए, नाटककार जो नाटक लिख रहे हैं, जो कहानी आपके पास है, उसमें स्टार्टिंग क्या होगा, मिडिल में क्या होगा और अंत में क्या होगा. ठीक है. द कैरेक्टर्स बाय मीन्स ऑफ व्हाट दैट थीम इज डिस्प्लेड, the medium through which both are to be given expression. मैंने थीम के बारे में लास्ट सेशन में बताया. थीम इज नथिंग बट the one single liner order of your entire play. जैसे मैं बोल रहा था लास्ट क्लास में भी, सत्यमेव जयते, सत्य का ही अंत में विजय होता है. ओके. हार्ड वर्क पेज टू यू, आप कड़ी मेहनत करेंगे उसका तो फल मिलेगा, है ना. ग्रीडी पीपुल का नुकसान होता है. ऐसा अगर समझ लो ये मेरा थीम है. उस थीम को दर्शाने के लिए मैं एक कहानी बनाता हूँ. जैसे सत्यमेव जयते का मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया, राजा हरिश्चंद्र की कहानी हम उस पर ले सकते हैं. जैसे अभी मॉडर्न फिल्म्स में भी आता है ना, एक टैगलाइन होती है नीचे, एक फिल्म का टाइटल एक होता है, नीचे एक छोटा सा टैगलाइन होता है ना. जैसे बोलते हैं रौडी पुलिस, नीचे एक टैगलाइन आता है, टफ गाय टू डिफीट, है ना. ये टफ गाय टू डिफीट इज द थीम, एंड फॉर दैट यू आर कमिंग अप ए फिल्म कॉल्ड राउडी इंस्पेक्टर. सो इसको पूरा एक टैगलाइन को देख के ही आप समझ सकते हैं कि स्टोरी में शायद क्या हो सकता है, दैट इज नथिंग बट योर थीम. ओके. वो थीम को पहले फिक्स करें, फिर उसके बाद एक कहानी बनाएं. वो कहानी में भी आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, एक मिडिल पॉइंट होनी चाहिए, एक एंड पॉइंट होना चाहिए. उसके हिसाब से आप किरदारों का चित्रण करेंगे. उस किरदारों को भी ऐसा करेंगे कि आपकी कहानी वो कैसे बताएंगे, किन लाइंस में बताएंगे, किस तरह का एक्शन से बताएंगे, ये हम उसको डिजाइन करेंगे. ओके. प्लॉट में फिर से प्लॉट के ऊपर आता हूं. द ऑर्डर ऑफ यूनिफाइड प्लॉट इज ए
continuous sequence of beginning again, middle or end. Okay, the beginning initiates the main action and it is known as exposition. Last time भी मैंने फ्रेटा के ग्राफ के बारे में बताया था. The middle presumes that it has gone before and requires something to follow, है ना. कुछ कहानी आगे हो चुकी है, कुछ आगे कहानी होने वाली है. इस तरह से आपका मिडिल होना चाहिए. And crisis comes later to reversal happening, follow which the denouement and the final solution takes up to the end of the play. इसका मतलब क्राइसिस, बीच में जो संघर्ष है. फॉर एग्जाम्पल मैं फिल्म का ही देता हूँ. हीरो है तो विलन हीरो के ऊपर अटैक करता है, शायद हीरोइन को गायब कर देता है, तो फाइनल वो चेजिंग चलती रहती है एंड रिवर्सल होता है ना. हम एक सोचते हैं कि शायद विलन जीत जाएगा या फिर शायद हीरो जीत जाएगा. इसका रिवर्सल शायद हो भी सकता है. हैपनिंग्स एट द डिनोमा इज नथिंग बट द climax of any play, and then final solution comes up. Maybe hero kills the villain, or villain will be caught and police will be coming and arresting the villain, and there will be a happy ending at the end of the play. तो हैप्पी एंडिंग वाला प्ले जो होता है उसको हम नाटक की भाषा में मेलोड्रामा कहते हैं. मेलोड्रामा, हैप्पी एंडिंग. उसके बाद सब खुश है, एक ग्रुप फोटो आती है दी एंड करके. और इन नाटक में ऐसा नहीं है. नाटक में बहुत सारे विधाएं, जैसे ट्रेजेडी है. ट्रेजेडी में ये जरूरी नहीं है कि आपका जो क्लाइमैक्स है वो हैप्पी एंडिंग हो. जैसे एडिपस रेक्स में ये होता है कि लास्ट में रिवर्सल ऑफ द कैरेक्टर्स होते हैं, मगर जो राजा, जो प्रोटैगनिस्ट, जो हीरो जो होता है, वो अपने आंखें, अब खुद के आंखें अपने निकाल लेता है. दैट इज द एंड ऑफ द प्ले. उसने जो भी किया है उसका भुगतने का, उसको क्या बोलते हैं, उसको शिक्षा मिलती है कि वो अपने आंखों को खुद फोड़ता है. तो इतना घटिया सा काम उसने अपनी जिंदगी में की है, तो उसका रिजल्ट वो वहां बताता है, जो ट्रेजेडी है. ऐसा क्यों ये नाटक का ट्रेजेडी का लक्षण होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. द जर्मन क्रिटिक, ऐसे मैंने बोला था लास्ट टाइम भी, Gustav Freytag indicated the analysis in a pyramidal structure. He described the typical plot in 5 acts. 5 एक्ट में ये बताऊंगा. नाटक में स्ट्रक्चर जो होते हैं 5 एक्ट, 5 अंकों का नाटक होता है. एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5, ऐसा. तो ये जो एक्ट्स का हिसाब से उन्होंने अपना ग्राफ बनाया, जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, मिडिल पॉइंट है और एंड पॉइंट हो रही है. उसे हम ये कहते हैं कि रेजिंग एक्शन, एक्सपोजिशन हो गया, उसके बाद एक रेजिंग एक्शन आ रहा है, एक बाद में क्लाइमैक्स है, देयर इज ए फॉलिंग ऑफ एक्शन एंड देन डेनोवा. This is the structure which last time I have explained. You can refer to the last time video for more details. Recognition is also happens at this moment. Recognition यही है कि we will recognize the qualities of what is the protagonist, what is the antagonist. Protagonist का मतलब hero of the play, antagonist का मतलब simple words में मैं कहूँ तो villain of the play. Who's these two, antagonist and protagonist, they are the opposite factors, the binary factors in any play or in a movie. Okay. This is the recognition by the protagonist of something essential and important. जैसे मैं एडिपस रेक्स का एग्जांपल दूं तो एडिपस he recognizes that whatever the bad things happening in the country, he's searching for them, but he is none other than he himself. उसी के कारण इस तरह का जो प्रॉब्लम्स आए हैं उनके राज्य में, उसका कारण वही है. वो रिकग्निशन जब उसको होता है कि इन सभी का कारण मैं ही हूँ, जो उसके लिए खुद के लिए वो ढूंढ रहा है कि इसका कारण क्या है, और उसको खुद पता नहीं, बाद में पता चलता है कि ये पूरा जो हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है. दिस इज कॉल्ड रिकग्निशन. ओके. ए प्लॉट इन्वॉल्व्स, इट एरोजेस एक्सपेक्टेशंस एज वेल एज ए सरप्राइज. प्लॉट में ऐसा नहीं है कि कोई कहानी बता रहे हैं, उसको कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ हम एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं. एज एन ऑडियंस वी एक्सपेक्ट समथिंग एंड सडनली वी विल गेट सम काइंड ऑफ सरप्राइज. उसे उल्टा विपरीत भी हो सकता है. The interplay is the suspense and surprises is plot. Okay. The conflict in drama, it may arise between characters, ऐसे पहले में मैं बताया था, and the ideas हो सकते हैं between 2 characters or the events, or between the characters. Situation भी हो सकता है, larger forces of existence. Larger forces means not only characters, an ideology, a methodologies between 2 countries and 2 nations. It can be anything like. Still, the development must follow logically from preceding development
and every situation that arises in the course of the play has to be logical and convincing. इसका मतलब one incident happens, the next incident should have a lead to that. ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद सडनली आप किसी और कॉमेडी सीन को जंप कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता. One incident which has given a deeper meaning, it should lead to a similar kind of a deeper meaning. उसका लॉजिक होना चाहिए. इसका मतलब यही है कि A अगर होता है तो suddenly you cannot jump to the scene C. It should have a intermediate scene of B. A, B, C, D. इस तरह से आपका जो लॉजिक है, लॉजिक ऑफ रीडिंग योर अल्फाबेट्स गोज. सिमिलरली स्टोरी में भी उसी तरह का प्रोग्रेशन होना चाहिए. सडनली आप एक सीन दिखाया, उसके बाद में उसको फटाक से अंत दिखा दिया, ये नहीं हो सकता. ड्रॉपिंग ऑफ द स्टोरी लाइन, इट इज not recommended because it doesn't carry any kind of a suspense or interesting factors. Okay. Now coming to plot and character. A plot have a subplot. Subplot matlab it will also have a second story. If you see any film, main story is also running and there is a comedy track is also running. This to understand, I'm just giving you example. It need not be the same in theater, in drama. इन ड्रामा एक मेन स्टोरी चल रही है राम की, बीच में एक और भी स्टोरी चल सकती है, जैसे हनुमान जी की स्टोरी हम बता रहे हैं, वाली या सुग्रीव की स्टोरी उसमें बता रहे हैं, तो दिस कैन बी अ सब प्लॉट इन अ मेन प्लॉट. इट कंप्लीट रन्स पैरेलल टू द मेन प्लॉट. द सब प्लॉट सीम्स टू बी ब्रॉडन एंड पर्सपेक्टिव ऑन द मेन प्लॉट. इसका मतलब सब प्लॉट जो चल रही है, छोटी सी कहानी, इट विल ऑल्सो हैव सम काइंड implications on the main story also. ओके, मेन स्टोरी के ऊपर इसका असर होता है, जो इंडिपेंडेंट स्टोरीज नहीं चल सकते हैं. जैसे फिल्म में चलता है, कहीं ना कहीं कॉमेडी सीन चलता, कॉमेडियन का स्टोरी बताते बताते वो कहीं जस्टिफिकेशन ना देते हुए वो बंद हो जाती है. मगर नाटक में ऐसा नहीं है. जो प्लॉट सब प्लॉट चल रही है उसका भी इक्वल इंपॉर्टेंस विल बी गिवन ऑन मेन प्लॉट. उतना नहीं जितना मेन प्लॉट का है, मगर इट विल हैव सम काइंड ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द मेन स्टोरी. Okay, character. No, character के बारे में मैंने बताया, किरदार. The persons, the people involved in action of the play are referred as characters. We access them on the basis of what they say and what they do. वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, यही देखकर हम उनका अंदाजा लगा सकते हैं वो किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह का किरदार है. A character is an individual or a type representing distinct traits through their speech. Speech is nothing but dialogue and their deeds. Deeds are nothing but actions. एक कैरेक्टर को हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं. जैसे टिपिकल पुलिस कांस्टेबल है तो हर बार उसी तरह से एक्शन करता है, उसे हम टाइप कास्टिंग करते हैं, है ना. इसका मतलब आइदर द कैरेक्टर इज ब्लैक, आइदर द कैरेक्टर इज व्हाइट. मतलब बहुत ही अच्छा आदमी है या बहुत ही बुरा आदमी है, इस तरह का अगर कैरेक्टराइजेशन आप देखते हैं तो दे आर कॉल्ड टाइप मतलब मुद्रांकित, क्लीशे जैसे कहते हैं ना. एक ही तरह का एक मुंशी होता है जो अकाउंट्स लिखता है कोई नाटक में या फिल्म में, वो उसी तरह का कपड़े पहनेगा, उसी तरह का बातचीत करेगा या उसी तरह का बिहेव करेगा, है ना. दिस इज टाइप कास्टिंग. मगर आजकल वी विल सी some kind of a villainish elements in hero and hero kind of elements in villain. And the modern trend is coming up like that. So ये ग्रे शेड भी आ रहा है. कंप्लीटली ब्लैक ही नहीं होता आदमी, होता है क्या ऐसा? कंप्लीट ब्लैक आदमी नहीं होता, विलन होता है, या कंप्लीट विलन हीरो नहीं होते हैं. दोनों लक्षण कहीं ना कहीं एक आदमी में होता है. उसी को आजकल का मॉडर्न थिएटर दिखाता है, या रियलिस्टिक प्ले या रियलिस्टिक फिल्म्स आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. So in last class I told you about the characters को कैसे they should have some minimum 3 dimensions I was talking about. One is the physical dimension, and the second dimension was psychological dimension, and the third was the sociological dimension. Physical dimension represents his physical attire, how he appears. Psychological dimension is that key, how that particular character thinks about one simple problem, or how he sees his society and comments on that. And finally, sociological dimension, this particular character, where he or she is being placed in the society. Society में एक हायरार्की है ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इस तरह में ये कहाँ फिट इन होते हैं, उस तरह से भी अगर हम उनको पहचानेंगे तो उसकी बिहेवियर चेंज हो जाएगी. इवन ए प्लेराइट शुड थिंक इन दीज लाइंस
or an actor, once he provided a role, he should think about that. And a director who takes up a play and trying to design the play in किरदार को बताने में, उनकी मोमेंट्स फिक्स करने में कोशिश करते हैं, तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि फिजिकल डायमेंशन क्या है, साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्या है, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन क्या है। तो आपको एक आसानी होती है कि आप किरदार को समझ रहे हो, तो वो किस तरह से बोलेगा या फिर किस तरह से उसका एक्शन हो सकता है, वो हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। कैरेक्टर अगेन, कैरेक्टर अरिस्टोटल थे एथोस के नाम पे वो बोलते हैं, द मोरल एलिमेंट, द डायोनिया, the intellectual element are the two basic elements that constitute a character. एक तो moral element होती है, एक intellectual element भी होती है, जो दोनों को कभी ना कभी दर्शाती है। इन दोनों चीजों में अरिस्टोटल बोलते हैं कि आप इनको डिजाइन कीजिएगा। What is the moral attitude of that particular character or the intellectual element which is there in that particular person? If you take up that, वो कर सकते हैं। अब फिजिकल डायमेंशन को तो एक्टर या डायरेक्टर को सोचना चाहिए, क्योंकि द सेम पर्सनालिटी इफ यू नीड, he or she may not be available when you search for an actor. Physical dimension can be created with the help of your costumes and some kind of a property, you see. But the moral values and intellectual values which are supposed to be designed while writing the play only. Okay, na? The main character is so-called hero. I already told you, he is generally called as protagonist. The opponent is the antagonist or the villain. A character may remain stable or may undergo a radical change, but he should have a consistency from beginning to the end. इसका मतलब क्या हुआ? एक किरदार अपने बिहेवियर को सटिल रखेगा और अपने बिहेवियर को नाटक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो चेंज करता जाएगा, मगर देयर शुड बी अ रीजन फॉर दैट। वो क्यों अपना एक्शंस को चेंज कर रहा है, क्यों उसकी मेंटालिटी में चेंज हो रही है, क्यों इसके मेंटालिटी में या एक्शंस में बदलाव आ रहा है, उसका एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। नहीं तो जो देखने वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना आगे। ऑल ऑफ अ सडन ए पर्सन बिकमिंग वेरी गुड, ऑल ऑफ अ सडन ए पर्सन बिकमिंग वेरी बैड इज नॉट अलाउड इन प्ले और इन फिल्म। आप देखेंगे तो एक सीरीज होता है ना, कि सीरीज ऑफ एक्शंस के बाद वो बहुत सारा एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको बैड एक्सपीरियंस हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वो आदमी बुरा बन जाता है। या एक ऐसा आदमी है जो एक प्रोटैगनिस्ट है, उसके साथ एंटागोनिस्ट है, उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है बार बार, तो शायद वो अपना एटीट्यूड बदल के एक अच्छा सज्जन बनने की कोशिश भी करेगा। इस तरह का होना चाहिए। तो मैंने फिर आपको बताया था 3 डायमेंशंस, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डायमेंशन। These things actually comes in the purview of the actor and also the director, but sometimes or most of the times the playwright will also indicate that what is the physical dimension of the particular fellow, साइकोलॉजिकल डायमेंशन कैसा है, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन कैसा है, वो अपना लाइंस में बता सकते हैं। हेलो, समवेयर माइक्रोफोन्स ऑन है, प्लीज स्टॉप कीजिएगा। हेलो, ओके, hello, some disturbance is coming and someone has opened his microphone. At the end I will give you chance, don't worry. 3 unities में नाटक में इसका क्या है? Unity of action, unity of place, unity of time. So these are actually maintained in way back in Greek theater. Unity of action मतलब एक एक्शन हो रहा है, सपोज ए वार सीन इज हैपनिंग, उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब यह है कि नाटक पूरा सपोज एक लोकेल में हो रहा है, लोकेशन में हो रहा है, सपोज एक पैलेस में हो रहा है पूरा नाटक, उसको हम पैलेस में ही करेंगे, समझ रहे हैं ना। पैलेस से उठकर हम फिर जंगल में नहीं जाएंगे या फिर कहीं ओपन प्लेस में नहीं ले जाएंगे उसको। और तीसरा है टाइम, टाइम मतलब कहानी अगर 24 घंटे के अंदर जो कहानी हो रही है उसी कहानी को हम बता रहे हैं, तो दिस इज known as unity of time। मतलब सालों साल का जो कहानी है हम नाटक में नहीं बताएंगे, उसका उसी को हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। ये क्यों हो रहा है? दीज यूनिट्स आर मेड फॉर ग्रीक थिएटर। ग्रीक नाटक स्ट्रक्चर में ये होते थे, अभी हम इनको फॉलो नहीं करते। अभी आप मॉडर्न प्ले में देखेंगे यूनिटी ऑफ एक्शन भी नहीं हो रहा है, एक एक्शन के बाद कहीं और दूसरा एक्शन हो रहा है। यूनिटी ऑफ प्लेस भी नहीं है, यहाँ पे एक लोकेल है, दूसरा लोकेल आपका कुछ जंप कर रहे हैं कहीं और टाइम का भी
आज सुबह का मतलब 24 आवर्स का नहीं है, आपकी कहानी और ज्यादा दिनों तक चलती है, उसको भी हम दर्शा रहे हैं। क्यों? ग्रीक ना में यही होता था कि ग्रीक में ओनली 3 एक्टर्स आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑल द कैरेक्टर्स, तो उसको कंफ्यूज ना होना चाहिए ऑडियंस को, इसीलिए हम एक्शन को एक ही एक्शन को लिमिट करते थे, दूसरा प्लेस को भी लिमिट करते हैं, तीसरा टाइम, वो तो ओनली 24 आवर्स में जो कहानी हो रही है उसी को वो दर्शाते थे, उनकी पॉसिबिलिटी वहीं तक थी। तो अभी तो वो नहीं है कि वी विल ब्रेक ऑल द रूल्स, वी विल ब्रेक द यूनिटी ऑफ एक्शन, वी विल ब्रेक द यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, क्योंकि अभी जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, ये हमको बताने का कहानी वो 24 आवर्स या फिर 2 days का कहानी नहीं है, वो सालों साल का कहानी हो सकता है। प्लेस का भी यही है कि वो ग्रीक का जो एलिवेटेड एक एरिया होता था, वो एम्पी थिएटर टाइप में, उसको हम ऊपर से ऐसे देखते थे, तो वहाँ 3 ही एक्टर्स हैं और 3 एक्टर्स बहुत सारे किरदार निभा रहे हैं, द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मास्क, एक कैरेक्टर के लिए एक मास्क यूज किया, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, तो ये कंफ्यूजन ना होने के लिए उन्हें यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ स्पेस, यूनिटी ऑफ टाइम को लेना पड़ा। अभी वो मामला नहीं है, ठीक है ना। Dramatic structure, act and scene, I already told you, act is the major division of the action of the play. This British drama division was introduced in Elizabethan drama. उसमें 5 acts का होता था. In 19th century there are 4 acts है. 20th century में फिर musical dramas which consists only 3 acts. अभी हम 3 acts को ज्यादातर फॉलो करते हैं. अंक 1, दूसरा अंक, तीसरा अंक, ये तीनों में हमारा नाटक खत्म हो जाता है. और हर एक अंक में and we will have some kind of a different kinds of scenes, छोटे छोटे दृश्यों का निर्माण होता है, सीन वर्क जैसे हम कहते हैं ना. इन रिसेंट टाइम्स प्लेस आर सीक्वेंस ऑफ सीन्स एंड देयर आर नो मेजर एक्ट्स. ऐसा होता है कि शायद हो सकता है एक ही एक्ट हो, उसी एक ही एक्ट में बहुत सारे सीन्स हो. तो पुराने जमाने में जब नाटक लिखा जाता है तो वो 5 एक्ट का होता था, बाद में 4 एक्ट में हो गया, अभी हम 3 एक्ट की बात करते हैं, शायद आगे जाके एक ही एक्ट का होगा, उसमें छोटे छोटे सीन्स बहुत सारे हो सकते हैं. इन रिसेंट टाइम्स देर आर ओनली वन एक्ट और 2 एक्ट्स, इवन 2 एक्ट्स का भी है, उसमें बहुत सारे सीन्स होते हैं. अब शेक्सपियर के प्लेस देखेंगे, दे आर इन 5 एक्ट्स, और आप ब्रक्तियन का देखेंगे, दे आर मोर इनटू सीन्स रादर देन नो एक्ट्स एट ऑल. अब जब इंडिया को आते हैं, हम इंडियन प्ले स्ट्रक्चर को देखते हैं, संस्कृत ड्रामा को देखते हैं, कालिदासा प्लेस आर डिवाइडेड इनटू एक्ट्स ओनली, दे आर नॉट इवन डिवाइडेड इनटू सीन्स. सीन्स में क्यों हुआ है, एक्ट्स में क्यों है, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. एक्ट एंड सीन कैन बी डिफरेंशिएटेड इजीली बाय फॉलोइंग द 2 ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन. जैसे एक कर्टन फॉल हो रहा है तो एक्ट खत्म हो गया, एंड द सीन कैन आल्सो चेंज by just changing the lighting. और intermission is usually between acts. एक intermission होता है, इंटरवल 5 मिनट का या 10 मिनट का विराम, तो आपको समझना चाहिए कि एक एक्ट खत्म हो गया, दूसरा एक्ट चलने वाला है. A scene is an independent unit marked by the continuity of the action without changing the place or a play. सीन में एक छोटा सा चीज हो सकती है, वो should have a continuity to the next following scene. One of the most productive ways of discussing the play is to focus on individual scenes, for any scene will tell us a lot about the plays as a whole. तो ये भी एक स्ट्रक्चर है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल सीन को भी उठाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ पूरा नाटक के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, उस तरह से सीन्स को लिखना चाहिए, ये इसका मतलब है, ठीक है ना. Aside the lines whispered to the audience or to the another character on the stage. Aside मतलब हम ऐसे हाथ ऐसे मेरे मुंह के सामने लगा कि मैं किसी एक एक्टर से बोल रहा हूं, बाकी सुनेंगे नहीं, ओनली वन कैरेक्टर स्पीकिंग टू द अदर एक्टर, जस्ट विस्पर में बोल रहे हैं, किसी और को ना सुने आए, उसे हम बोलते हैं aside. Sometimes the purpose is to inform the ऑडियंस को पता लगना चाहिए कि क्या अगले होने वाला है. अब देखो वो आ रहा है तो देखेंगे कि क्या होगा. अगर इस तरह का लाइन में बोल रहा हूं, मेरे फेलो एक्टर को बोल रहा हूं, to not to the entire people who are there on the stage, it is known as aside. कॉमिक रिलीफ यही है कि जो सीरियस एक्शन हो रही है उसके बाद एक छोटा सा सीरियस प्ले है, उसी में एक छोटा सा कॉमिक रिलीफ होता है, so that the audience will also have some kind of a relaxation. Okay. And Deus Machina, the word drawn from God from the machine.
डीएक्स मशीन का मतलब, मशीना मतलब है गॉड फ्रॉम द मशीन। जैसे क्राइसिस होती है किसी नाटक में, उसका हम रिजॉल्व कहीं ना कहीं नहीं कर पाते, तो ऊपर से एक भगवान, एक मिशन निकल के आती है, उसमें से एक भगवान का रूप आता है, वो सजेस्ट करते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए। सपोज there is a play, Ram and Hanumanji is fighting, and ultimately Lord Shiva comes, and he will stop the war. क्योंकि Ram is also very powerful man and Hanumanji is also very powerful. If इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि there is no solution for that, only God, the other God can come and give a solution. So that if that Lord Shiva is coming, he is coming through a machine. This Deus Machina technique is used. It was used in Greek plays, नॉट इन एनी इंडियन प्लेस। हम देखते हैं तो आकाशवाणी का आता है ना, आकाशवाणी बीच में बोलती है कि भाई रुक जाइए, लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए करके ना। दिस इज सिमिलर टू दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। Foreshadowing is a technical word which indicates the lines or the hint to give a clue for the future events. एक डायलॉग्स के बीच में ही कुछ बोलने का तरीका है कि आगे क्या होना। हो सकता है कि मैं गुस्से में आके किसी को मार दूं, ऐसा कोई डायलॉग बोला तो आपको समझना चाहिए कि दिस फेलो में भी बार बार ऐसे बोल रहा है, मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ, एक दिन मैं सबको मार दूंगा, मुझे ऐसा मत करो कि मैं किसी की हत्या कर दूंगा, डोंट प्रोवोक मी टू डू समथिंग विच इज ड्रास्टिक, ऐसा कुछ मैं बार बार बोल रहा है एक कैरेक्टर नाटक में। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड फोरशैडो। आगे जो होने वाला है उसको कहीं ना कहीं ये बंदा अपने डायलॉग से, अपने लाइन से इंडिकेट कर रहा है। ये एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे एक मिडिल ऑफ द ड्राइंग रूम एक चाकू आपने रखा, बार बार उसके ऊपर आप लाइट, जब सीन एंड हो रहा है उस पर आप लाइट थ्रो कर रहे हो, तो इसका मतलब ये चाकू का कोई ना कहीं देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन फर्दर इन द प्ले। उस चाकू से किसी को मारना है या फिर किसी को स्टैब हो सकता है, इसी के लिए फॉर शोडिंग पहले से उसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो। दिस इज द टेक्निक विच इज यूज्ड बाय बोथ प्ले राइट एंड एज वेल एज द डायरेक्टर। फ्लैशबैक तो हम समझते ही है, which story to will be taken back and retold before the audience. उसमें उस दिन क्या हुआ था पता है, characters will go back. And dramatic irony is that कि जो what is the truth in the play which is known to the audience को पहले ही पता लग जाता है, but stage पे जो characters है उनको नहीं पता लगता। Suppose a thief has entered into a house. As an audience we know that fellow is a thief, but जो घर में और किरदार है उनको पता नहीं कि ये चोर है या नहीं है। This is something called which is dramatic irony, which is usually used by the playwright to create some kind of a suspense or surprise. Okay. Masque is it was introduced in Renaissance Italy and flourished in England. This is also again a technique. It was an elaborate form of a court entertainment that combines poetic drama, music, song, dance, drama, and all. It creates a space spectacle. Characters wore masks at the end, afforded with masks. So ये एक छोटा सा नाटक और नाटक के बीच में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन होता था, एक छोटी सी कहानी, उसे ये मास्क कहते थे। मोटिव is nothing but the theme, subject or the idea. Pantomime, you know that mime क्या होता है? It is an act on stage without any speech. कोई लाइन बोले बगैर बोले, जेस्चर्स, पोस्चर्स के साथ, बॉडी मूवमेंट के साथ हम कोई कहानी बताना चाहते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस को जोड़ते हुए, उसे हम पैंटोमाइम कहते हैं। समटाइम्स इसमें म्यूजिक भी यूज करते हैं, म्यूजिक यूज भी नहीं होता है, बट इट इज ए पैंटोमाइमिक का अलग एक शो होता है। चार्ली चैपलिन मूवीज इफ यू हैव सीन आर द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पैंटोमाइम शोज। you know he's also narrating a story without any lines, only with actions. Poetic justice is nothing but at the conclusion of the play, अगर conclusion of the play में हर कैरेक्टर का एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, इट इज नोन एज पोएटिक जस्टिफिकेशन। इन अदर वर्ड्स, ओन एक्शंस लीड्स टू द कंक्लूजन। इसका मतलब किरदार का जो एक्शन होता है, जो भी काम करते हैं हम उसके हम भुगतते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो आप जो काम करते हैं उसका रिजल्ट निकल के आता है। वट एवर यू वॉन्ट टू यू विल गिव, इट विल कम बैक। दैट इज नोन एज पोएटिक जस्टिस। इट्स इन एवरी प्ले और इन फिल्म इट शुड बी रिफ्लेक्टेड। इन अदर वर्ड्स, एवरी कैरेक्टर का क्लियर कट जस्टिफिकेशन होना चाहिए।
Agar good characters are doing good things, they must be rewarded. Bad characters are doing some bad events or bad things, they must be punished. This is nothing but the poetic justice. Setting up, जानते हैं कि setting is nothing but the locale. I am talking about historical time. जैसे वी सी मूवी ऑफ हिस्टोरिकल मूवी, आपने देखा होगा हिस्टोरिकल मूवीज भी बहुत बने हैं. उसका टाइम, उस टाइम फ्रेम में अगर हम कर रहे हैं तो उस टाइम के फ्रेम का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. उस टाइम का कॉस्ट्यूम कैसा होता था, बिहेवियर कैसा होता था, प्रॉपर्टी क्या होती थी, ड्रेसिंग क्या होती थी, और सोशल थे. इट विल गो ऑल गो विथ एन हिस्टोरिकल टाइम. प्री इंडिपेंडेंस का हम नाटक कर रहे हैं तो उस जमाने में कैसा होता था, पोस्ट इंडिपेंडेंस अभी नया जमाना है तो क्या हो रहा था. और हम वी गो टू बियॉन्ड हिस्टोरिकल, राणा प्रताप या शिवाजी का हम नाटक करते हैं तो उसमें सेटिंग और लोकेल और सोशल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही कैरेक्टर्स कैसे बिहेव करेंगे ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है ना. एंड soliloquy is another word. It is an act of talking to oneself, usually aloud and alone on the stage. एक ही कैरेक्टर अगर स्टेज के ऊपर खड़ा होके बहुत लंबा संभाषण बोल रहा है, लंबा लाइन बोल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं soliloquy. Okay, let us sum up now. Almost my session has run into 1 hour, maybe less than 1 hour. So I don't want to stretch it further. इस यूनिट में हमने अभी तक प्लॉट, कैरेक्टर्स के बारे में और 3 यूनिटीज विच आर मोर रिलेटेड टू योर ग्रीक थिएटर, एटमॉस्फेयर क्या है, सेटिंग क्या है, टोन क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस किया. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट थिंक अबाउट हाउ द ड्रामा इज इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म. हाउ, इसके बारे में थोड़ा आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आप इसमें डिस्कस कीजिए, या फिर कुछ समथिंग यू वांट टू स्क्रिबल एंड सेंड इट टू मी, यू आर वेलकम. ओके, आई विल गो बैक टू स्टॉप प्रेजेंटेशन. मंजू, या Sir, I have a question. जस्ट वेट मैन, जस्ट गिव मी 1 minute. Sure. या, यस, Sir, Mohit this side. या. Sir, you may find my question a bit generic, but still, if you can answer that, that'll be really appreciated. Sir, someone who is very senior to me in theater line, they recommended me to read some stories, some books. I'll give you the example. Like there is a book which is called as uh, आषाढ़ का एक दिन, and another one is अंधेर नगरी by Bhartendu Harishchandra, right? Okay. Sir, I tried to go through with these books, but the kind of language which is used in these books, I'm not able to relate that language with the current world. So if you talk about the Hindi which is used in these books, that is, you can say, you can say the actual Hindi, the pure Hindi which is used in India, right? So, you know, if you other than that, if you talk about another book, it's I think it's a play, Suraj Ka Satwa Ghoda, right? हाँ. So I went through all of these, right? But I'm not able to relate this entire thing with the current, current kind of roles that we play into the acts, right? So I request you to please help me to understand how come, reading these stories are going to improve the acting skills, and how come they are going to help us in the future. Let's say if we'll be doing some sort of roles into the modern eras, like if you talk about the current television shows, so the characters are not those characters which are being used, right? So the sort of characters that are being played into those television shows, they are completely different, right? So I'm not able to relate, like how come reading these stories
can help us? I mean, please guide me if it is a good thing to read these books and go according to that, or what should be the actual approach to learn acting as per your experience, sir. Thank you. Okay, Mohit, there are two things like reading the books which you are talking about and training yourself as an actor. These are two different aspects. One thing is that whoever you suggested you to read these books is a very good idea. You should read them. But today also I was talking about something called setting. जो play Andher Nagari and these plays are being aimed to talking about one particular period or one particular time where these plays were written or the language which was used in those days. उनको उसी setting में हमको आपको समझना चाहिए. Don't relate those things into the modern day society today. Because if you are talking about classical language, which is not used right now, but you have to understand those language or the story or the way they expressed to उसी को आप सीमित रखिए उस टाइम का पीरियड के बारे में. अंधेर नगरी, चौपट राजा, जो सिचुएशन में जो लैंग्वेज अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आपको स्टडी गाइड्स मिलते हैं. वो प्ले का सिनॉप्सिस क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, उनको पहले पढ़िए, फिर बाद में नाटक को पढ़िएगा. एंड यू कैन रिलेट दी मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है, वो अगेन ए क्लासिकल काइंड ऑफ ए थिंग is talking about the story of Kalidas. Instead of that, you can read Aadhe Adhure of Mohan Rakesh again, which is talking about more of a contemporary kind of a story. You can relate yourself or you can relate to the people who are around you in that particular play. Okay? Don't stop reading plays just because we are not understanding the language. Or see, what I'm talking about, in each play you have this physical dimension, psychological dimension, sociological dimension. If you are given a chance to play Andher Nagari, Chaupat Raja, so you have to interpret that in these three. What is his psychological dimension, sociological dimension, physical dimension? Then how you can behave, how you can do justice to that particular character. That analysis will help you out. Okay. This is always best. We need reading. Enormous reading. हमें चाहिए. उससे आपकी जो इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन स्किल्स है एक्टर के, वो आगे बढ़ते हैं. उसके बारे में फिर मैं बाद में बताऊंगा आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में. आई वुड लाइक टू टेक ए सेशन ऑन दैट. इन दैट हाउ द रीडिंग विल हेल्प यू, that I can tell you. These are the periodical plays. जैसे periodical plays को उसी पीरियड में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. You cannot just relate to this kind of, because if you see the Sudraka play of Mrichakatikam, Shakara जैसे character are universal characters. Those characters are available even in today's society, but they may not be speaking the same lines which the playwright was given. Just like by Bhartendu, राजा राजा है या फिर मंत्री है, फिर वो कोतवाल है, वो जिस तरह का लैंग्वेज बात करते हैं वो नहीं होगा, लैंग्वेज नहीं होगा, मगर वो कैरेक्टर्स तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. सिंपल रीजन फॉर अभी भी अंधेर नगरी चौपट राजा का परफॉर्मेंस हो रहा है. इसका मतलब यह है कि द प्रॉब्लम ऑफ अंधेर नगरी चौपट राजा और फॉर योर आषाढ़ का एक दिन, वो स्टिल these are existing problems. Just because of that only, the contemporary nature of those problems, still these plays are being performed. But language is different, I can understand, because they are meant for that. They are talking about that particular period. अब आज कंस की कहानी करके एक प्ले आता है, उसका पूरा टाइटल मैं आपको बताऊंगा, और वो पढ़ेंगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. दो दे आर टॉकिंग अबाउट द सेटिंग ऑफ कंस महाराजा का है, और दे हैव यूज्ड अ वेरी कंटेम्परेरी लैंग्वेज. दैट इज आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेक्निक, So you must read those plays. You try to understand in that setup itself. Okay, then you can come back to your modern plays and you can talk about modern languages. Modern में हो रहा है आपको, ये आपको study continuous रखना चाहिए. ठीक है ना? This would be my suggestion. Okay. Yeah. Somebody else? Mohit, your voice. I'm not able to get your voice, Mohit. आवाज सुनने नहीं आ रहा है. You have muted yourself, Mohit. Unmute yourself. अच्छा, anybody else in between? कोई और है? Thank you. अजय. हाँ. Okay, sir, I already asked, and one girl has given me the reply also. But again, I wanted to ask you, like last 2 lectures I missed. So can you send that link in the group? Yeah, it was already sent in the group.
It's already there. Because I have been added very late. So if you can resend again, then I can see that. Okay. Okay, thank you. Priyanka? Rahul? And so suppose I want to write something, so send it on your personal WhatsApp or in the group. Group, you cannot send any messages. I have stopped that. Oh, message. yes. Because, if that is I- open, my life will become more happiest because I don't have any other work. Just I have to reply your queries. So if something you want to write and send it to me, you can send it to me at dth@igno.ac.in. Okay. Priyanka, tell me. गुड आफ्टरनून सर Yeah. आई हैव ए क्वेश्चन सर वो जो बुक्स थी ना वो अभी मेरे एड्रेस पे आई नहीं है बुक्स अभी एड्रेस पे आएंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी प्रिंट हो रहे हैं. मैंने इसलिए बोला ई ज्ञान कोश का वेबसाइट पे जाइए, उनको डाउनलोड कीजिए. फिलहाल जब तक आपके बुक्स घर पे नहीं पहुंचते हैं, आप उनसे डाउनलोड करके पढ़िएगा, उसमें से निकाल के ऑनलाइन पढ़िएगा. बाद में कुछ टाइम लगेगा, इसमें कोविड का टाइम चल रहा है. नो पब्लिशर इज रेडी टू पब्लिश, सो दैट्स व्हाई वी हैव अपलोडेड ऑल द स्टडी मटेरियल इन ई ज्ञान कोश. ठीक है ना? सर कौन सी वेबसाइट पे ई ज्ञान कोश. मैं वेबसाइट का एड्रेस फिर से ग्रुप में डाल देता हूँ. ठीक है? ओके सर थैंक यू राइट. राहुल, गुड मॉर्निंग सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर एक क्वेश्चन है मेरा. मैंने लास्ट में पढ़ा था तो मार्जोरी बोल्टन सेड अ ट्रू प्ले इज 3 डायमेंशनल. व्हाट इज दिस मीन? मतलब इसमें मैं जो समझ पा रहा हूँ सर, क्या वो करेक्ट है नहीं है, वो मैं सर आपसे जानना चाह रहा था. बेसिकली ट्रू प्ले इज 3 डायमेंशनल वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या एक तो ड्रामा पार्ट हो गया, दूसरा इनका मतलब ड्रामा पार्ट के बाद और कौन कौन से पार्ट हो गए सर जिसकी वजह से 3 डायमेंशन आएगा? भाई आपने जो डेफिनेशन दिया उसका कंप्लीट तो करो. वो किन 3 डायमेंशनल में बात कर रहा है? नहीं. बस वही सर, उसके अंदर एक लाइन है. एक्चुअली मैंने आपके ये मटेरियल पढ़ा था तो उसमें मैरी बोल्टन जो बोलते हैं ट्रू प्ले इज 3 डायमेंशनल. व्हाट इज 3 डायमेंशंस इन दिस प्ले, इन द प्ले basically? Mostly they were talking about the middle point, starting point, middle point and end point. ओके. अच्छा सर ऐसा है, क्योंकि मुझे जहां तक वो समझ में आ रहा था तो मुझे ये मैंने पूरा पढ़ने के बाद मतलब ये अंदाजा लगाया कि ये नहीं है कि स्टार्टिंग मिडिल एंड उसमें तो उसमें हाँ. मुझे जो समझ में आ रहा था वो मैंने थोड़ा अपनी तरीके से उसमें ये समझ पाया कि बेसिकली ड्रामा एक इसके अंदर म्यूजिक और ये सारी चीजें आ जाती हैं और उसके बाद इसके अंदर No. कुछ और चीजें होती हैं. You are right. But every drama need not have music. Every drama should not have ये जो आप बोल रहे हो ना, टोटल थिएटर जो कॉन्सेप्ट है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक या फिर और भी डायमेंशन, इट नीड नॉट बी. I'll go back and look into that and get back to you in the next session. जी. Okay? क्योंकि वो ड्रामा के साथ साथ जो मुझे समझ में आया वो ड्रामा, स्पेक्टेटर्स एंड ऑडिटोरियम, ये 3 जो हैं बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक अच्छे प्ले के लिए. ठीक है, ड्रामा के अंदर वो प्लॉट, म्यूजिक, स्टोरी ये सब चीजें कवर होती हैं, मतलब सारी चीजें, सेटिंग्स वगैरह सब चीजें आती हैं. और जो स्टेज हो गया, मतलब ऑडिटोरियम और स्टेज हो गया. Actually, थर्ड look, वन राहुल, इसमें 3 चीजों का अगर आप बोल रहे हो एलिमेंट्स, तो उसमें एक तो परफॉर्मर, अब मैं एक्टर नहीं बोलूंगा, परफॉर्मर की जरूरत है, स्टोरी की जरूरत है, ऑडियंस की जरूरत है. जी सर, वो ड्रामा पार्ट में नहीं आ जाता, मतलब मैं इसलिए वही बोल रहा हूँ ना, स्टोरी जब मैं बोल रहा हूँ या आइडिया बोल रहा हूँ, उसमें सारे चीजें आ रहे हैं, जैसे ड्रामा है, डायलॉग है, जो भी है. परफॉर्मर चाहिए आपको, तो आपको एक स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, और इन दोनों होने के बाद भी थिएटर नहीं होता जब तक ऑडियंस नहीं होते हैं. बिल्कुल. और आप स्टोरी भी है, आपका ऑडियंस एक्टर भी है, और वो परफॉर्म कर रहा है, वो रिहर्सल हो सकता है, अनलेस देयर इज ए एलिमेंट कॉल्ड ऑडियंस. तो ये हो सकता है, मगर जो आप बोल रहे हो वो क्या है, फिर मैं गेट बैक टू दैट. बिल्कुल. इन द नेक्स्ट सेशन. ओके फाइन. सर मेरा एक रिक्वेस्ट था, गीतांजलि बोल रही थी मैं. हाँ. सर ये जो आप इंग्लिश में समझाते हैं, कई एक चीज मुझे समझ में नहीं आता, मैं उतनी पढ़ी नहीं हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर रोज की ये जो क्लासेस होती है संडे की, वो थोड़ी हिंदी में समझ. आप ना बिना वजह मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है. आज का सेशन देखिए, इसमें मोर देन 75% हिंदी में ही बोला मैंने. जी सर, मैं लेट ज्वाइन की थी सर, इसलिए तो मैं
देखिए फिर यही बात होती है ना, जी 11:30 का टाइम दिया हुआ है, आप 12-1 बजे 10 मिनट पहले भी एक बंदा ज्वाइन हो रहा है, तो उसमें मुश्किलें आती हैं। देखिए गीतांजलि जी, आपको कहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा हो, आप उसको क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका समाधान देने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है ना? देयर इज नो जी सर। प्रॉब्लम, है ना? कोई दिक्कत जी नहीं है, सर। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, जी सर। yeah, there was some problem in the connection, yeah, tell me. Any other questions? Hello? नो सर। Okay, okay. Thank you very much. Thank you very much for the session, and see you in the next session.